So, big congratulations, Adarsh Shekhra, for your German student visa, and that too with a German public university admit. Thank you, sir. It's been a great time, and you have all thanks to you and your all your team. सो आदर्श सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को हमारे व्यूअर्स को दैट आपका इंडिया में आपका एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या है, एंड आईएलटीएस में कितना बैंड स्कोर है आपका। Okay, I am Adarsh Shekra from Ahmedabad. I हाँ have done my bachelor's in mechanical engineering, and I applied for the sustainable building system in masters in Ansbach, Hochschule Ansbach in जी Germany. And I got my 2 days back. I got my visa, and all thanks to the previous sir and all the team of Indo Germans. They helped through all the process, and they guided me all each and every step as I'm doing the business simultaneously, so I don't have time to look out all the process, and they handle it very perfectly. So it's been a great time to यस। have with you. एंड आदर्श अपना आईएलटीएस में क्या स्कोर है? I got 6.5 bands in IELTS. 6.5 in your IELTS. Okay. So Adarsh, why Germany for you? Why not any other country? अहमदाबाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से देख रहे होते हैं। आपने क्यों जर्मनी सिलेक्ट किया? Because of first and foremost thing is the affordable like study, एजुकेशन। जी affordable education, as well as the nature like they also provide like good quality of educations along with the like industrial tie-up, and like they also gives good internships over there. And talking about other country, as we can see, like heard lot of news about Canada, like there is lot of racism and lot of job scarcity is also occurring in Canada. जी Apart from that, UK is the same time more expensive as compared to other country, and there is very minimal chance to get a job in UK because due to the lot of people over there. यस So, and for that reason, the German is the best country to study over there, as they also provide the free education जी जी। along with the like master's degree. So that's great. ओके एंड अपना फीस कितना है जर्मनी में टोटल? I think around is 72 euro, and like it 72 is, euros per semester. That goes yeah, around 6,500 Indian rupees yeah. per semester. It's like it's nothing to like when we are going compared to our master studies, like 70 euro is nothing. यस, और इंडिया में अगर आप मास्टर्स करते तो कितना खर्चा जाता ट्यूशन फीस में? Around 12 to 15 lakhs हो जाता है. अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते तो। Yeah, right, right. गॉट इट। सो आदर्श, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट जर्मनी? आपने जर्मनी के बारे में फर्स्ट टाइम कैसे सुना था, एंड एफोर्डेबल एजुकेशन के बारे में आपने कैसे रिसर्च किया था स्टार्टिंग में? At first, I thought about like Germany, as Germany is like leading country in engineering field. Apart from that, it's also believes in a zero waste policy, and that caught my attention. Apart from that, I came to know about Germany from one of my friend, and the who is also suggested me your reference, and ओके। whose name is Yatish because his brothers या, recently, ही yeah, वेंट टू टेक्नीशियन होchschule Ingolstadt फ्रॉम अवर एंड। हाँ, yeah. वो भी So, मैकेनिकल फील्ड से ही है। जी So like as I'm from mechanical engineering, the best place for me to go is like Germany because it is the hub of mechanical engineering, automobile, and many more. That's why I choose Germany over other country. गॉट इट, दैट वाज द मेजर रीजन टू ऑप्ट फॉर जर्मनी। Yeah, एंड यू, आपको हमारे बारे में आपके फ्रेंड के थ्रू ही पता चला था? yeah, right. Yatish gives me your reference. He told me that you handed over your all of your issue and like all of your file to professors. He will handle carefully, and you don't have to worry about anything. नितिश भी अभी एप्लीकेशन डालने वाले, वो भी आईएल्स का स्कोर ला रहे हैं। He's Ah, preparing. he is उन्होंने, preparing for it. हाँ, उन्होंने बोला कि अभी मैं लास्ट आईएल्स का ट्राई दे रहा हूँ, स्कोर आए फिर अप्लाई कर दे। मैं बोला परफेक्ट, विल डू इट। सो Yeah. आदर्श, एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन करना है तो बहुत सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप करनी होती है बिफोर इवन द एप्लीकेशन, सीवीज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो पार्ट तो हम लोग फिलअप करते हैं, बट एज अ स्टूडेंट सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, प्रोविजनल डिग्री, आईएलटीएस का स्कोर कार्ड, एंड देन वी नीड टू अप्लाई फॉर द एपीएस सर्टिफिकेट,
एंड फिर एपीएस आना और फिर पब्लिक यूनि में अप्लाई होता है। तो ये जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप का जर्नी है उसमें एज अ स्टूडेंट आपको कितना टाइम लगा था? I started applying for like collecting all the documents. It's like around January or February. In 2024 में? January, 2024. January or February, I applied for the FPS, and for the GTU student, it will take around like 32 to 35 days. And यस। for other university, like they might take longer time, but for GTU student, they only take like 33 to 35 days, and like your FPS will come. And the major like portion we have to wait is in application, during the application, because as we all know that like in public university in Germany, they like it's on like it's not like first come first serve. They analyze all the documents, they are analyze the all the students checklist, and then after they give you the offer letter. So for that reason we have to wait for the like for last to get offer letter. ओके, And गॉट इट। सो आदर्श, परफेक्टली, तो मतलब और आईएलटीएस में आपको कितना टाइम लगा था? IELTS में I think around 4 to 5 months. 4 to 5 मंथ्स आपने आईएलटीएस के पीछे स्पेंड किया है। तो आप क्या Yeah. सजेस्ट करना चाहोगे कोई भी स्टूडेंट को जर्मनी जाना है तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप के लिए आईएलटीएस, एपीएस, कलेक्टिंग एलओआरस, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल डिग्री और सारे मार्कशीट्स वगैरह कलेक्ट, अगर उनके पास नहीं है तो सब कुछ कलेक्ट करने के लिए आप उनको कितना टाइम पहले प्रोसेस शुरू करने का बोलोगे? First of all, when you are like when you are preparing for the IELTS, at the same time you have to apply for the like MOI letter and transcript in a GTU, because they also took like around 1 month time. And when you are trying to apply, that also mail them to give me as soon as possible. So in many university in a German, you can apply with applying along with the MOI. So your process will go on without स्टार्ट हो APS. यस। Start हो जाएगा. Then also transcript is also major document you have to collect from the GTU. And apart from that, along with your IELTS, you can also apply for the FPS certificate, which is also essential for the German public university, because they have to make sure that your degree is not fake. You have done degree like perfectly, and you have done degree. Uh, uh, your degree is like right. Your documents are all the authentic. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, यस। Original documents. Then you can took around like 3 to 4 months in IELTS, because IELTS is like all about your daily life English. You have to speak English on daily basis. That's how you improve your English more and more. Talk with your friend, talk with your family, with English language. IELTS will be clear in 2 or 3 months. It's like when you will speak more and more English, it will be easy for you to pass the क्रैक exam. इट अप, यस। परफेक्ट। Yeah. ओके। सो आदर्श, फ्रॉम योर एंड आपने जर्मनी के बारे में रिसर्च करना कब शुरू कर दिया था? At first, to be honest, after I give my LTS exam on last April 2023. After that, I was researching about the Canada, as I have many friends over there. But then I heard about like there is a lot of racism and like job scarcity over there. So I changed my plan and I come back to like Germany. As first I thought about Germany, but as I also think that there will इन be बैकअप language आपके पास barrier. क्योंकि अहमदाबाद से सारे स्टूडेंट्स भी कनाडा जा रहे थे तो आपने भी उस समय बैकअप में कनाडा Hmm. कनाडा चल रहा होगा। गॉट इट। Yeah, yeah. So for then after like I research about like Germany, I'm fan of like Germany for a very long time. But I thought like there will be a language barrier over there. But then I find out that like there will be also like English program over there. I will study my course in English language. So then after I decided, like I started collecting document around like December, January. When I look at I'm when I make my like mind, I started preparing for the all the documents and started apply. And I within a 4 or 5 days, I came to you for the process and for the admission. गॉट इट, गॉट And इट। you, yeah. देन वी टुक केयर ऑफ इट। सो आपने अहमदाबाद में किसी कंसल्टेंट के वहां पे भी रिसर्च के लिए गए थे, काउंसलिंग के लिए आपने गया था, गए थे आप?
Yeah, I research I visited 2 or 3 counseling here. इन But अहमदाबाद? as yeah, but in Ahmedabad, like they are good with the US and Canada, but nobody is like in expert in Germany. So I have to look forward the like perfect consultancy for that, and that's why I came to Surat for and ओके, to you. Yeah, okay, got it. So you in Ahmedabad, you didn't find a right consultant who can help you with the admission and visa process. yeah, आपने online process करवाया from yeah. Surat. There is a consultant, but like they charge around like 5 or 6 times higher than that, and like I for me like it's not worth to give that much money Hmm. because if you are find the perfect consultancy with the affordable rates, it will be great for you. Okay, perfect. So Adarsh, one more question over here that public university में admission मिलना, जब आप ये सोच रहे थे तब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस थे, और जब पब्लिक यूनिवर्सिटी से फाइनली जब ऑफर लेटर आया तो वो दोनों माइंडसेट में क्या डिफरेंस आता है एज ए स्टूडेंट? When I like thinking about that, like I thought there is just like some confusion over there. Like I don't think so. I will get the public university. I will. There was a time I got frustrated, like why I'm not getting the offer letter, and like. But when I finally got, like I was like over the moon because it was great moment for me because no one will give you the master's degree in like free. You have to study. Yeah. So that's a great moment for me when I got the offer letter from the public university, and it was pretty good या, that I will be studying like very minimal rate. यस, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड बिकॉज नो यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड वाइड, कोई भी यूनिवर्सिटी पूरा मास्टर्स का डिग्री, वो भी 2 साल का डिग्री एग्जैक्टली आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है 70 यूरोस पर सेमिस्टर उसका पैसा है, अगर 4 सेमिस्टर भी गिनो तो इट गोज अराउंड 280 यूरोस। तो ये खर्चे में कोई भी यूनिवर्सिटी अब्रॉड में मास्टर्स नहीं करा सकते। सो जर्मनी का जो एजुकेशन है वो जितना प्रैक्टिकल अप्रोच है उतना ही अफोर्डेबल भी है। दैट इज द ओनली रीजन कि जर्मनी, अभी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जर्मनी फॉर देयर मास्टर्स इन जर्मनी एंड स्पेशली फॉर देयर बैचलर्स इन जर्मनी। सो आदर्श, आप सबसे पहले जब हमारे पास आए थे तब आपका फर्स्ट काउंसलिंग सेशन भी मेरे साथ ही हुआ था। Right. तो आपको वो काउंसलिंग सेशन कितना इम्पैक्टफुल लगा था एज अ स्टूडेंट आपके लिए? और वो एज अ स्टूडेंट जब आप पहले खुद से सारा रिसर्च कर रहे थे वाया ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर अहमदाबाद में कंसल्टेंट को विजिट करके, और हमारे साथ जो काउंसलिंग सेशन हुआ उसमें आपको मेजर डिफरेंस क्या लगा? और एज अ स्टूडेंट जो सारा चीजें रिसर्च कर रहे थे तो आपके लिए वो पहला काउंसलिंग सेशन जिसमें मैंने स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट समझाया था, वो कितना इम्पैक्टफुल था एज अ स्टूडेंट, और कितना इंपॉर्टेंट था? It was very impactful, but when you are for any students who are like planning for to go Germany, it is very essential to know each and every step and each and every little things about the process. When I was researching about the Germany, I only know the like how to find any university. But at the same time, I also didn't get the like all the options of the university. And when I consultant you, like you, the team give me like all the options, and they provide me like each and every options. Also, there will be time I research about my from my side, and I also suggested to ऑप्शन team से? to apply. हाँ, मैंने भी सजेशन दिए like उन्होंने अभी अप्लाई किया, and it was a pretty good moment. ओके। And सो yeah, आप जब आदर्श आप हमारे पास आए तो पहला काउंसलिंग हुआ, फिर यतीश का भी मेरे पे कॉल आया था भाई कि हाँ, सर मेरे फ्रेंड आपके वहाँ पे रजिस्टर करें, मैं बोला हाँ, ठीक ठीक है। तो आई रिमेम्बर पहले आपका प्रोफाइल इवेलुएट हुआ था, सीवी बना था, फिर यूनिवर्सिटी तुरंत हमने आपको शॉर्टलिस्ट करके प्रोवाइड कर दी थी, और सेम टाइम पे हमने एपीएस सर्टिफिकेट के लिए भी। हाँ, एपीएस अप्लाई कर दिया था। तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि मार्च में आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन शुरू हो रही थी और हम लोगों ने जनवरी में एपीएस के लिए अप्लाई कर दिया। तो जब हम लोग यूनिवर्सिटी में एक्चुअल एप्लीकेशंस कर रहे थे तब हमारे पास आपका एपीएस सर्टिफिकेट था। वो एक Yeah, टॉपेज हो जाता है एज अ स्टूडेंट आपके लिए। फिर सीवीएसओपी एलओआर वी रॉट इट एंड देन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन हुए, एंड समथिंग अपना 1 to 1.5 मंथ के अंदर आपका एडमिशन लेटर आ गया था, राइट? yeah, right. डन।
and then you paid the semester contribution and blocked account पे we opened it up. तो आदर्श, यू आर फ्रॉम अहमदाबाद, हम लोग सूरत से हैं, तो ब्लॉक्ड अकाउंट का मनी ट्रांसफर आपके लिए कितना आसान हुआ था? आपने पैसा हमारे थ्रू ट्रांसफर किया था या डायरेक्ट बैंक से किया था? ना, वो अब लाइक इंडो जर्मन का आपने इंडो जमा रेफरेंस मनी दे। ट्रांसफर से ही आपने ट्रांसफर किया? हाँ हाँ, तो उन्होंने लाइक कितना? इजी, इट वाज अ कितना? वेरी इजी प्रोसेस, क्योंकि मैंने वो उसको लाइक आरटीजीएस कर दिया था, उन्होंने एक और 2 दिन में पूरा प्रोसेस कर दिया और मेरे पास मेल आ गया था। व्हेन पहले मेरा मेल से ना स्पैम में आया था। तो हाँ। व्हेन आई कॉल्ड हिम लाइक सर मेरे को मेल नहीं आया, तो सर ने बोला कि आप एक बार मेल करो, हमने हमारी तरफ से प्रोसेस हो गया है, तो उन्होंने रिसिप्ट भेज दिया था। हम्म। देन आई चेक इट ऑन अ स्पैम बॉक्स, इट वाज ऑलरेडी देयर। एंड एक ही 2 दिन में तो पूरा प्रोसेस हो गया था हाँ, और ब्लॉक एक अकाउंट दिन का। में ब्लॉक ओपन हुआ और दूसरे दिन आपका मनी ट्रांसफर हो गया था, हाँ, और पूरा हो गया आपको था। टीटी कॉपी भी आ गया होगा आपके पास। हाँ, टीटी कॉपी भी आ गया था। ठीक है, तो आप अहमदाबाद से हो, लेकिन सिमलेस ब्लॉक का प्रोसेस भी सूरत से सिमलेस हो चुका था। हाँ, पूरा सीमलेस वहीं से हुआ था, यहाँ से हाँ। मैंने आरटीजीएस करवा दिया था। हाँ। फिर ब्लॉक ओपन होने के बाद हम लोगों ने आपका वीजा का सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू लिखा था। पूरा वीजा फाइल हमने यहाँ पे रेडी करके रखा था, और आप स्पेशली अहमदाबाद से आपने सूरत भी ट्रैवल हाँ टू कलेक्ट द वीजा फाइल, आप शाम को आए थे फाइल लेने के लिए। हाँ हाँ, सो मैंने सोचा हाँ, क्या मैंने बोल रहे सोचा आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और वीजा का हाँ फाइल भी ले लूंगा, पूरा समझ लूंगा, इन डेप्थ नॉलेज, फेस टू फेस। दैट्स जी। व्हाई आई कम ओवर देयर। ओके। सो आदर्श, जब आपने वीजा फाइल कलेक्ट करी, वीजा का एसओपी, कवर लेटर, फिनांस ओवरव्यू, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आपने कलेक्ट किया है, तब आपको वीजा फाइल मेरे यहाँ से कैसा लगा था? कंप्लीट वीजा फाइल। ये वो तो पूरा वो लाइक पीयूष सर ने पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट करके ही दिया था, मैंने सिर्फ एक बार लाइक गो थ्रू किया था। हाँ। कुछ चेंज वगैरह कुछ नहीं किया था, पूरा ऑलरेडी सेट हुआ था, मैं सिर्फ वही डॉक्यूमेंट की कॉपी करवा के, हाँ। तो जो दूसरी बार में मैं वहां पे आया था, कुछ वो एड ऑन करना था ना, वो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे आ गया था, पीयूष सर ने फिर वापस सब सेट कर दिया था पूरा सेट। तो 300 सेट लेके मैं बॉम्बे चला गया था। मैंने उसमें लाइक सिर्फ गो थ्रू किया था, डन। पढ़ा वढ़ा था, लाइक मतलब एक बार गो थ्रू किया और मैं सीधा लेके चला गया वीएफएस में। यस और यस। मेरा पूरा प्रोसेस हो गया। देन 5 और 6 दिन में मेरा कॉल आ गया था वीएफएस से। वीएफएस। हम्म। हाँ, दे आस्क कंफर्मेशन एंड लाइक उन्होंने ऑथेंटिटी की ऑथेंटिसिटी चेक की, हाँ। लाइक स्टूडेंट की, लाइक एज दे ड्यू टू द हाँ। लाइक टोफेल की वजह से काफी स्टूडेंट लाइक फेकली गए, तो उन्होंने लाइक थोड़ा स्ट्रिक्ट वगैरह किया है, तो लोग ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इंग्लिश टेस्ट करते हैं कॉल करके। जी। दैट्स इट। उसना और उस ज्यादा मेजर होता नहीं है, तो मैंने आंसर वगैरह कर दिए थे। देन विद इन 5 और 6 डे मेरा वीजा आ गया था। वीजा आ गया था, परफेक्ट। एंड आपका जो वीजा इंटरेक्शन होता है, उसका आपको प्रिपरेशन यहाँ पे कैसा हो जाता है? हाँ, अ, वो तो लाइक वो बहुत बढ़िया था। मैं सुबह एक बार उठ के पहला कॉल कर देता था रूथ मैम को कि भाई मेरा इंटरव्यू प्रैक्टिस करवा लो, तो पूरा हाँ। इंटरव्यू प्रैक्टिस कर लेते। एट द सेम टाइम मेरा लाइक अभी बिजनेस है, तो मैं पूरा दिन टाइम नहीं रहता था, हाँ। तो हर रोज का 10 मिनट का ही मैं प्रैक्टिस करके जाता था। एंड हाँ। इट वॉज अ प्रीटी गुड। ठीक तो है। उसकी वजह से ये हो जाता था सब। हाँ, तो तो स्टूडेंट भी प्रेशर वो हो जाता है कि भाई वीजा ऑफिसर से अगर कॉल भी आता है तो भी नो प्रॉब्लम, हाँ मैंने अपना प्रिपरेशन सारा कुछ अच्छे से किया हुआ है, हाँ तो वो एक हेलो कंप्लीट सर। हो जाता है। एंड सेकेंडली, मेरे यहाँ से आपको एक और क्वेरी ऐसी है, आपको टोटल इसमें बजट कितना यूज हुआ फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग? कंसल्टिंग फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका एडमिशन पार्ट के लिए और वीजा पार्ट के लिए आपको टोटल कितना खर्चा हुआ? पहला तो एपीएस का 18,000 होगा, एटीन हाँ, थाउजेंड रुपीज फॉर द एपीएस, देन ये 18,000 एपीएस का हुआ, फिर हम लोगों ने यूनियासिस। 5 यूनियासिस का हुआ था। यूनियासिस में पहले 7,000 का था, फिर 3-3 हजार में लाइक पांच रफली हुए थे। अबाउट 20,000 इंडियन रुपीज फॉर द यूनियासिस एप्लीकेशन। हाँ, 20,000 यूनियासिस का था। फिर आपने अहमदाबाद से बर्लिन जर्मनी डॉक्यूमेंट्स कुरियर किए होंगे, दैट मस्ट हैव कॉस्ट यू अराउंड 2,000 इंडियन रुपीज। ना, मैंने एक यूनिवर्सिटी में मेरा भेजना था, और इनको लाइक मतलब उसमें भी भेजना था, यूनियासिस को भी भेजना था। हाँ, यूनियासिस उसमें और दूसरे को यूनिवर्सिटी थी, रिवर्स यूनिवर्सिटी में वर्क। आपने कुरियर किया था, गॉट इट। हाँ, तो तो उसमें रफली दोनों फिगर 3-3 हजार, 6,000 अराउंड हुआ था उसका। ऑन एन एवरेज अहमदाबाद से 6,000 जैसा वो लगा था। हाँ आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होगा 7,000 इंडियन रुपीज। हाँ, 7,000 उसका।
इंडियन रुपीज 7,000। और हाँ, उसके बाद अपने ब्लॉक के लिए आपका एग्जैक्ट अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ था इंडियन रुपीज में? 11.46। 11 lakhs। हाँ, 11.33 समथिंग था, 33 और 36 समथिंग। रफली 11.5 लाख अपन लेके हाँ, चलते। 11.5, 11.5। और जब आप वीजा फाइल सबमिट करने गए तब? वहाँ पे अराउंड 12,000, 11,800, क्योंकि इलेवन वो थाउजेंड मेरा वो लाइक प्रीमियम प्रीमियम लॉन्च भी लिया था, और पासपोर्ट अश्योरेंस भी लिया था, तो उसके लिए। ओके। एंड अभी जो कॉस्टिंग बचती है, दैट विल बी 50,000 INR फॉर द फ्लाइट टिकट्स एंड 1.5 लाख INR, दैट द कैश दैट यू विल बी टेकिंग टू जर्मनी। और या बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू हैव पेड टू द अवर कंसल्टिंग फीस। तो रफली आपका 14.5 लाख इंडियन रुपीज के अंदर पूरा ये मास्टर्स पड़ेगा। हाँ, 14.5 lakhs, बट राइट। उसमें ब्लॉक ब्लॉक आपका ही है, 11 लाख इंडियन रुपीज इज योर। हाँ, यस। ओके, परफेक्ट। सो एट द एंड आदर्श, आप किसी भी स्टूडेंट को जो जर्मनी जाना चाहते हैं, आप आपके एंड से उनको क्या कहना चाहोगे? यू शुड स्टार्ट प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल, प्रीवियस सर के पास आओ, हो जाएगा। तो हो जाएगा। गॉट इट। एंड आप पूरा सर्विसेज के बारे में अगर आपको किसी को भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो आपका जर्नी आप कैसे शेयर करोगे कंप्लीट? एज आई मेंशन अबाउट, लाइक मेरा बिजनेस भी साथ में है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता था। तो हाँ। इन द एंड, लाइक इन द एंड में, लाइक दिन खत्म होने के बाद एक अपडेट ले लेता हूँ कि भाई मैम क्या अपडेट हुआ है, कुछ है मेरे एंड से कुछ करना है वगैरह। और फिर पूरी टीम अपना पूरा केस अपने आप से हैंडल कर लेती थी, तो उसका कुछ ज्यादा इशू नहीं था। मेनली तो जर्मनी में तो डॉक्यूमेंट्स, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आओगे तो प्रीवियस सर तो अपना काम कर ही देंगे। एंड आपको कभी भी ये फील हुआ ड्यूरिंग द वीजा प्रोसेस एडमिशन तक कि अगर आपने एक ऑफलाइन अहमदाबाद में कंसल्टेंट हायर किया होता तो ज्यादा बेटर पड़ता, एज कम्पेयर टू सूरत में आपने ऑनलाइन काम दिया है, और आप मुझसे तो पहली बार तब मिले जब आप वीजा फाइल लेने आए थे। हाँ, तो ना उसका तो कोई इशू नहीं, आप वो घर बैठे बैठे पूरा प्रोसेस करवा सकते हो। आपको सिर्फ फोन पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना है, क्योंकि ऑल थिंग्स इज ऑनलाइन। जी। तो आप पूरा घर पे बैठ के ही कर सकते हो, लाइक देर इज नो वरी कि यहाँ पे भी करवाओ, यहाँ से भी करवाओ। और बाकी हम लोग 10:30 से 6 जूम पे भी लाइव है, यही लिंक पे लाइव रहते हैं 10:30 से 6। हाँ। तो कभी भी क्लिक करके आप हमसे फेस टू फेस बात कर सकते हम्म। हैं। एंड अदर, द फाइनल कंक्लूजन, आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस। 10 on 10। 10 out of 10. Thank you so या much, Adarsh. And that's it. So, students, if you're looking forward to study in Germany, definitely contact KJ here at Privesh Chauhan at Indo-German Education. Like Adarsh, आपका भी process seamless हो जाएगा. So, thank you, Adarsh.